السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما۔ رب زدنی علما۔ پیارے بچوں، آج ہم یہ بورڈ پہ لکھا ہوا حفظ دعا ما ترجمہ، یعنی ایک دعا پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں چیزیں آج ہم اچھی طرح یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کی کتاب اسلامیات برائے جز وقتی مکاتب سال سوم کے صفحہ نمبر 33 پر ہے یہ دعا، ٹھیک ہے؟ کھول لیجئے، سب لوگ کھول لیے سب؟ اب یہ دعا ہم پڑھائیں گے، آپ سب اس کو دہرائیں گے، ٹھیک ہے؟ جب دعا ہمیں یاد ہو جائیں گے اچھی طرح تو اس کے بعد ہم پھر ترجمہ یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس کے مطلب میں جائیں گے کہ اس سے ہم کیا سمجھے، ٹھیک؟ چلیے اب دعا یاد کرتے ہیں پہلے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمغرم والمأثم۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمغرم والمأثم۔ یہ ہے دعا، ٹھیک ہے؟ سستی اور گناہ سے حفاظت کی دعا ہے یہ۔ آپ میں سے کسی کو یاد ہوا؟ اچھا، سنائیے، ریان آپ سنائیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمغرم والمأثم، یہ نا والحرمی نہیں ہے، والحرمی چھوٹی ہا ہے، ٹھیک ہے؟ والحرمی، حرمی من سے بڑھاپے، ٹھیک؟ والحرمی کیا پڑھیں گے؟ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمغرم والمأثم۔ اب بتائیے کوئی۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمغرم والمعصم۔ ویری گڈ، آپ سنائیے۔ اللہم انی اعوذ بک، ٹھیک ہے؟ ویری گڈ، سنائیے، آپ سنائیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمغرم والمعصم۔ ویری گڈ، بہت اچھا، آپ سنائیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمغرب والمعصم۔ اب بتائیے اس نے کچھ مسٹیک کیا؟ اچھا، آپ بتائیے کیا مسٹیک ہے؟ اچھا، بہت اچھا، کیا ہونا چاہیے؟ پوری دعا سنائیے آپ۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والمغرب والحرم والمغرب والمعصم۔ کیا ہے؟ والمأثم، والمأثم۔ ایک بار اور میں پڑھاتا ہوں، دھیان سے پڑھیے آپ۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمغرم والمأثم۔ اب سنائیے، آپ سنائیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمغرم والمعصم۔ آپ سنائیے زرقام۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمغرم والمعصم۔ بہت اچھا، اب ہمیں لگ رہا ہے آپ سب کو یاد ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب ترجمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک؟ اب ترجمہ ہم پڑھیں گے، ہمارے ساتھ آپ بھی پڑھیں گے بعد میں، پھر ہمارے پڑھنے کے بعد۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی، بڑھاپے، قرض اور گناہ سے۔ اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں سستی، بڑھاپے، قرض اور گناہ سے، ٹھیک ہے؟ اب کسی کو یاد ہوا؟ آپ سنائیے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی، بڑھاپے، قرض اور گناہ سے۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ، آپ سناؤ۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی، بڑھاپے، قرض اور گناہ سے۔ بہت اچھا، آپ سنائیے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی، بڑھاپے، گناہ اور قرض۔ بہت اچھا، آپ سنائیے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں بڑھاپے،
सुस्ती और कर्ज से। अच्छा, आप सुनाइए। अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ, ठीक। मैं तेरी पनाह चाहता हूँ बुढ़ापे से, सुस्ती से, कर्ज से और गुनाह से। गुनाह से, बहुत अच्छा। और एक दो बार पढ़ाता हूँ, पढ़िए। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ सुस्ती, बुढ़ापे, कर्ज और गुनाह से। इसमें चार चीजें कही गई बच्चों, ठीक है। क्या क्या? सुस्ती, बुढ़ापे, कर्ज और गुनाह से। ये चार चीजें ऐसी है जिससे अल्लाह ताला की पनाह चाही गई है कि अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। किससे? सुस्ती से। सुस्ती मतलब, सुस्ती का क्या मतलब समझे आप? आलस। कोई काम न करना और दूसरों को बोलना कि ये काम नहीं लियो मेरे लिए। अच्छा, और बताइए, आप कुछ बताइए। जैसे हम सुस्ती कर रहे हैं, जैसे आज हम कोई काम कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं चलो ये तो कल भी हो जाएगा, फिर कल हम सोचेंगे नहीं तो परसों भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी वक्त पे कोई काम न करना, ठीक है। अब स्कूल से आए हम, मदरसे का टाइम हो रहा है, हम कह रहे हैं यार थोड़ी देर में चल रहे हैं, थोड़ी देर में चल रहे हैं, बस अब तैयार हो रहे हैं। मालूम हुआ ऐसे करते करते हमारा टाइम निकल गया, ठीक है। सोए हुए हैं, अब नमाज का टाइम आ रहा, फजर में नमाज का टाइम आ रहा है कि अब जाएंगे अब जाएंगे अब जाएंगे, बस वो सुस्ती और काहली में वो चीज़ रह गई, नमाज रह गई हमारी। टाइम हो गया मदरसे का, मालूम हुआ सुस्ती और काहली में हम अब जाएंगे, वो चीज़ रह गई। तो किसी भी काम को वक्त पे ना करना, टाल मटोल के करना, ठीक है। वक्त बेवक्त, कोई किसी भी काम को बेवक्त करना, अभी करना है तो अभी करना है उस काम को, है ना, टाल मटोल के नहीं करना, ठीक। इसी तरह बुढ़ापे से पनाह मांगना, क्या समझे इससे आप? यानी कि अगर कोई काम करना हो तो अल्लाह ताला ऐसी ताकत दे कि बुढ़ापे में हम वो काम कर सके, ये नहीं कि दूसरे से बोले कि ये काम कर दो हमारा। अच्छा, आप बताइए, आप क्या समझे? कि बुढ़ापे अभी ऐसा है जिसमें हमारे पास काम करने की सलाहियत। और हाथ उठाइए कोई, और किसी को कुछ पता है इसके बारे और में? बुढ़ापे में हमें कोई ऐसी तकलीफ ना हो जिससे हम दूसरों को बोले कि वो हमारा काम करे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और किसी को कुछ मालूम है? यानी बुढ़ापा कोई ऐप की बात नहीं है। बुढ़ापा, अल्लाह ताला हम लोगों की उम्र लंबी करी तो हम सब के भी बुढ़ापे आएंगे, ठीक है। लेकिन बुढ़ापा कोई ऐप की चीज़, ऐप की बात नहीं है। लेकिन बुढ़ापे में किसी का मैं सहारा, किसी की ज़रूरत का मोहताज बन जाऊँ, यानी मैं मजबूर ऐसा हो गया कि बगैर दूसरे के मैं नहीं चल सकता, बगैर दूसरे के मैं नहीं खा सकता, बगैर दूसरे के सहारे के मैं कोई काम नहीं कर सकता। यानी ऐसा मजबूर हो जाना, ऐसे बेड पे पड़ जाना कि दूसरे की ज़रूरत हमें महसूस हो, दूसरे की ज़रूरत के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हों। यानी ऐसा बुढ़ापा जिससे पनाह चाहा गया है कि हम किसी के मोहताज बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बुढ़ापा कोई ऐप की चीज़ नहीं है, पर किसी का मोहताज हो जाए तो परेशानी होगी। मालूम हुआ मुझे अभी दवाई खानी है मुझे, और कोई साहब है नहीं, और मैं पानी के लिए परेशान हूँ, दवाई के लिए परेशान हूँ। और अगर अल्लाह ताला सही सलामत रखे तो आदमी चल फिर के सारा काम कर सकता है। तो किसी का मोहताज न बनाए बुढ़ापे में, ठीक है। बुढ़ापे में किसी का मोहताज न बनाए अल्लाह ताला, इसके लिए हमें अल्लाह से पनाह चाहनी चाहिए। और क्या है? कर्ज है। कर्ज का मतलब, हाथ उठाइए, बताइए आप क्या समझे? अभी जी कर्ज से ये समझता है कि हम जब हमने किसी से अगर कोई कर्ज दिए तो हमें फौरन अदा करना है। और हमें ऐसे किसी भी चीज़, छोटी छोटी चीज़ों से कर्ज भी ले भी तो हमें ऐसा कि हम अदा कर लें उससे, अपनी ज़िंदगी करके हम अदा करें। बहुत अच्छा जी। कर्ज कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत ज़रूरत पड़ने पे आदमी ले सकता है, पर जल्दी से अदा करनी चाहिए। वरना अब क्या होता है कि आप कर्ज ले लिए ढेर सारा, लोग आपको बार बार कह रहे हैं हमारा कर्ज अदा करो, और आपके पास उसकी गुंजाइश नहीं अदा करने की, तो आपको परेशानी हो रही ना। तो हमें अल्लाह से ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें कर्ज न लेने की वो नौबत आए, ठीक है। अल्लाह ताला उससे हमारी हिफाजत फरमाए। इसी तरह है गुनाह से क्या पनाह मांगना, इससे क्या समझे आप? हाथ उठाइए। भी कोई ऐसा काम जो शैतान को पसंद हो उससे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई ऐसा काम जो शैतान का काम हो, हम वो ना करें कभी अपनी जिंदगी में, जैसे कभी चोरी ना करें, कभी झूठ बोले, ऐसी कोई काम है जो हम ना करें जो शैतान का काम है। गुनाह के बहुत से रास्ते और बहुत से तरीके हो सकते हैं, हमें हर एक से बचना चाहिए।
गुनाह के जो भी तरीके हैं हमें उन सब से बचना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा जो है हर रोज़ का ये मामूल बन जाए कि हम नमाज़ छोड़ने वाले बन जाएं, मस्जिद ना आने वाले बन जाएं, स्कूल ना जाने वाले बन जाएं, खेलने वाले बच्चे बन जाएं। तो इससे हमें बचना चाहिए। हर गुनाह का काम जो हमें नहीं करना है वो उससे हमें बचना चाहिए, ठीक है। गुनाह का आदी नहीं बनना चाहिए। आदमी कभी मिस्टेक से कोई गलती हो गई तो माफ़ी तलाफ़ी होनी चाहिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना चाहिए और हमें इसका आदी नहीं होना चाहिए गुनाह का, ठीक है। तो हमें ये दुआ हमेशा अपनी नमाज़ों के बाद भी और वक्तों में भी इस दुआ को पढ़ना चाहिए। इसे आप अच्छी तरह याद करें और अपने घर से अच्छी तरह याद करके आएँ तर्जुमा के साथ, और यहाँ भी पढ़ें, अपने नमाज के बाद भी इस दुआ को पढ़ें और जब मौका मिले आपको इसको पढ़ें। तो एक बार और मैं पढ़ता हूँ, आप सब पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर घर से पढ़ के आइए और भी अच्छी तरह। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कसली वल हरमी वल मग़रमी वल मअसमी। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ सुस्ती, बुढ़ापे, कर्ज और गुनाह से। अब घर से इसको अच्छी तरह याद करके आइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।